M. Nagarajan sir, Director of Higher Education and CEO of SCOPE, and Honorable Speaker, Srimati Madhu Singh, Director of BM Institute of Mental Health. All of you are warmly welcome for the webinar on New Mindset, New Era. I would like to start the webinar with a very inspiring quote by Joseph Taylor. Your mindset determines how you perceive and connect to the world around you. Your mindset does not only impact how you perceive the world around you, but it also impacts how you see yourself. You have certain mindset about yourself and your abilities. Your mindsets have a lot to do with self-confidence, self-esteem, as well as self-development as a whole. Each day is a new beginning, and how to stand and grow in the new beginning is the most challenging task for an individual. As the whole world is passing through challenging time, and in this new normal for the youth, it is very much important to learn about how to stand and grow in current circumstances. With this objective, SCOPE has organized this webinar on New Mindset, New Era. SCOPE, Society for Creation of Opportunities through Proficiency in English, is to build English language proficiency among the youth of Gujarat and thereby to create employment opportunities for them. SCOPE is conducting examination on LinguaSkill and CPT in association with Cambridge University, UK. Apart from this, SCOPE organizes various quizzes, competitions, workshops, and webinars to create an awareness among the youth of Gujarat. Recently, we have arranged essay competition and we got overwhelming response from the students. We have started various e-quizzes on English grammar and we have completed 6 quizzes. Approximately 3,500 youth participated in all quizzes. Now I would like to invite Shri M. Nagarajan sir, Director of Higher Education and CEO of SCOPE. Sir is constantly supporting SCOPE team and we all learn many things under his guidance. Now I would like to request Shri M. Nagarajan sir to say a few words on this occasion. Sir, welcome. Thank you very much. This today's webinar being organized by SCOPE in association with the special speaker from BM Mental Institute is targeted on youth. આપણા youth માટે positive thinking અને એક એસ્પિરેશનલ થિંકિંગની અત્યારે ખૂબ જરૂરિયાત છે. કોવિડની પેન્ડેમિકમાં આપણે બહુ ચેલેન્જીસ ફેસ કર્યા અને જે 3 મહિના 6 મહિનામાં પૂરું થવાનું હતું હવે લગભગ 1 વર્ષ થવા આવ્યું છે અને હજી ચેલેન્જીસ આપણને બાકી છે અને ડે ટુ ડે આપણે એને ફેસ કરીને આગળ કરવા માટે દરેક ક્ષેત્રમાં ટ્રાય કરી રહ્યા છે. તો યુવાનો માટે એક પોઝિટિવ અભિગમ અત્યારે રાખવા માટેની જરૂરિયાત ખૂબ વધી ગયું છે અને કોવિડ પહેલાનું પરિસ્થિતિ અને હવે પછી જે નવું નિર્માણ થવાના છે એ પરિસ્થિતિ બંનેમાં બહુ ફેર થવાનું છે અને કોવિડ પછી સામાન્ય જીવન જ્યારે પાછું આવશે ત્યારે પણ કોવિડનું એફેક્ટ યથાવત કંઈક ને કંઈક રીતે આપણા માનસિકતામાં, સોશિયલમાં, ઇકોનોમિકમાં અને એજ્યુકેશનલ સ્પિયરમાં પણ રહેવાનું છે. એમાં યુથને તૈયાર કરવા માટે સ્કોપના મારફત આજનું જે સેમિનાર છે એ ખૂબ સમયસર આવ્યું છે અને પોઝિટિવ થિંકિંગ માટે ગુજરાત સરકાર વતી આપણે કોવિડના ટાઈમમાં કોવિડ કિરણ હેલ્પલાઇનનું પણ ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું. એ વખતે સ્ટુડન્ટ્સનું જે ડાઉટ્સ છે એને આપણે કોવિડના સંદર્ભમાં ક્લિયર કર્યા હતા. એમના ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ અને હેલ્થ મેનેજમેન્ટનું વિષયમાં પણ ખૂબ રસ લીધી હતી. આપણા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી અંજુ શર્મા મેડમ અને સ્પેશિયલિસ્ટ ડોક્ટર્સ ડેઇલી આપણે 10 થી 12 ક્વેશ્ચન્સ લઈને 1 મહિના સુધીનો આ પ્રોગ્રામ ચાલ્યો હતો. એમાં સ્ટુડન્ટ્સને ખૂબ લાભ થયો હતો. નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર અસ ટુ ગો ઇનટુ ધ ફોરવર્ડ થિંકિંગ મોડ. જે આપણે કોવિડના ડિફેન્સિવ મોડમાં હતા એનાથી હવે ફોરવર્ડ થિંકિંગ અને પ્રોએક્ટિવ મોડમાં જવાના છે. તો આજનું જે સેશન છે એમાં યુથને અને આપણા સ્ટુડન્ટ્સને પ્રેરણા મળશે અને એમને ટિપ્સ મળશે કે હવે કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરવાનું છે અને એમનું ભવિષ્યને નિર્માણ કરવા માટેનું બેસ્ટ હેબિટ્સ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, કમ્યુનિકેશન, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ આ બધાનો વિષયમાં આજે એમને ઇનપુટ્સ મળવાના છે. તો આઈ વિશ કે આવી રીતના પ્રોગ્રામો કન્ટિન્યુ કરતા રહીએ અને વધારે સ્ટુડન્ટ્સને કમ્યુનિકેશન અને પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ ડેવલપમેન્ટમાં
प्रोत्साहन करता रहे. I congratulate Scope and I thank the speaker, Dr. Madhu Singh, for sparing her valuable time today for our students. Thank you very much. Now, I would like to invite our today's speaker, Dr. Madhu Singh. Dr. Madhu Singh, Director of BM Institute of Mental Health, Ahmedabad. She holds PhD in Psychology and is registered rehabilitation psychologist with Rehabilitation Council of India, New Delhi, statutory body of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. She is also the member of State Level Committee on Rights of Person with Disability Act 2016. Dr. Singh's competencies include institution building, research and innovation, community outreach for social integration, service development for preventive mental health and disability rehabilitation. She has extensive experience of teaching, learning assessment, research and administration of educational institution. She is competent in developing educational program and its implementation in university system. The youth, the young generation, have their own goals and objectives in their life. The youth has their own distinct traits. They are tech-savvy, multitasking, and want immediate result of hard work. They are easily distracted. They do not like authoritative learning and they like visual learning. They are ambitious. They have short span of attention. There are many challenges in front of youth. Youth, therefore, to change their attitude and mindset to fight against challenges and to achieve their goals in their life. Each one has inner strength and potential, and to identify their inner strength, they need to do introspection, meditation, and focus on their goals. It is not only the sole responsibility of youth, but the faculties, teachers, and parents also need to understand mindset of youth in the new normal and change their attitude and behavior towards the youth, so that we can have enthusiastic and energetic youth by which the whole nation can grow. I would like to invite Madhu ma'am to share her knowledge and inspire and encourage the youth in this new normal. Madam. Thank you so much, Mansi ji, and my greetings to Anju madam and Nagarajan sir. Thank you so much for having me here. I express my gratitude to Education Department and Scope for having me today to speak on the subject, which is very relevant. जैसा मुझे एंड स्पेशल थैंक्स टू द जॉइंट सीईओ जो पर्सनली जब आके मुझे मिले थे इस टॉक के बारे में बात करने के लिए, तो आई कुड सी द स्पार्क हाउ एवरी पर्सन इन द गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू इंटीग्रेट थिंग्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मानसी फॉर हैविंग मी हियर टुडे. आज का जो टॉपिक है, मुझे जैसा आपने बताया है, आई वुड ट्राई टू स्पीक मोस्टली इन हिंदी विद लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. सो जो की पॉइंट्स आज के प्रोग्राम के टॉपिक के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ, आई एम ट्राइंग टू गिव अ समरी ऑफ इट दैट विच वे आई विल टेक माय दिस स्पीच is I'll talk about understanding new normal and new era. In fact, the topic is new mindset, new era. So what is new era? What is new normal? Then issues and challenges of youth in new era. And the third key point what I would like to address is understanding inner potential of youth, which is very important to overcome or tide over, in fact, in such challenging times. So to start with, the topic itself says, and our respectable directors are also spoke just now that we were in a defensive mode. है ना, थोड़े डिफेंसिव मोड में हम थे, लेकिन अब समय आ गया है कि फॉरवर्ड थिंकिंग मोड में हम आए. एंड जहां तक आज के टॉपिक की बात है, न्यू माइंडसेट, न्यू एरा, सो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि न्यू नॉर्मल एंड न्यू एरा को हम समझें अगर इस तरीके से. न्यू एरा आई वांट टू एक्सप्लेन इट विथ 21st सेंचुरी, राइट. कहीं तो हमें कुछ एक अंडरस्टैंड करने के लिए ड्रॉ करना पड़ता है. सो आई एम टेकिंग न्यू एरा 21st सेंचुरी को खास तवज्जो देते हुए. एंड न्यू नॉर्मल ऑफ कोर्स 2020 से जो पैंडेमिक का सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस समय से. एवरी एरा हैज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एवरी एरा. बट न्यू एरा जो स्पेशली 21st सेंचुरी के साथ है, वो कई सारी चीजें पॉजिटिव लेके आया हम सबकी लाइफ में.
स्पेशली इतने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए थे पूरी वर्ल्ड में, एंड आई एम सो हैप्पी कि इंडिया एंड गुजरात में भी कहीं से भी पीछे नहीं रहा उन चीज़ों में। जिसमें ग्रोथ हम बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उस ग्रोथ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रही है, कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ी है, हेल्थ सेक्टर में आज गाइडेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेजर गाइडेड थेरेपीज होती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस ग्रोथ का, न्यू एरा का, इज द वैक्सीन। पैंडेमिक के बाद इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना फास्ट, ये ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताता है कि हम वैक्सीन डेवलप कर पाए हैं कोविड-19 जैसे महामारी के लिए भी। दूसरा ग्रोथ, अगर हम न्यू एरा के पॉजिटिव्स को समझने की कोशिश करें तो रिस्पॉन्स सिस्टम, हमारी कंट्री में रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। देखिए न्यू एरा, हम अगर 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सुनामी आया था हमारी कंट्री में भी, काफी लाइफ हमने लूज करे हमारे को सिटीजन्स की, लेकिन धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आज रिस्पॉन्स सिस्टम इतना बढ़िया है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, मेटलर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शंस कर दिए जाते हैं, अर्ली प्रेडिक्शंस, सो दैट लाखों लाइफ हम बचा पाते हैं। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। आज का वेबिनार इनफैक्ट ये न्यू नॉर्मल का एक एग्जाम्पल है, पॉजिटिव साइड, क्योंकि किसी भी चैलेंज से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आज हम देश विदेश से कनेक्ट हो रहे हैं, ना हमारे ऑफिस वर्क रुक रहे हैं, ना हमारी पढ़ाई रुक रही है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ई कंसल्टेशन दे रहे हैं, कोर्ट्स ई हियरिंग कर रहे हैं। सो कनेक्टिविटी एडवांस होने की वजह से, और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यू एरा के पॉजिटिव साइड्स के। एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव आए हैं न्यू एरा में। पहले के टाइम पे अगर आपने, है ना, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में ही करेंगे। स्लोली ये चीजें हमारी कंट्री में तेजी से बढ़ी हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑल्सो, इन चीजों को अडेप्ट करते जा रहे हैं हम। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, एंड एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, सो दैट मैक्सिमम पोटेंशियल बिल्डिंग की तरफ काम हो। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ की बात अगर मैं करूं न्यू एरा में, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ सब लोग सोचते थे, है ना। आज के टाइम पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप्स, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो न्यू एरा के पॉजिटिव्स हैं, जो यूथ को काफी बल देते हैं। लेकिन साथ साथ हर चीजों का एक अदर साइड भी होता है। न्यू एरा में डेवलपमेंट, ग्रोथ फास्ट होने के साथ साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, जिसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीजें हैं जिसपे हमें खास काम करना होगा, जो नेगेटिव्स ऑफ न्यू एरा हैं और जो चैलेंजेस ऑफ न्यू एराज हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है जो यूथ के संदर्भ में अगर मैं बोलूँ तो दैट इज अ काइंड ऑफ heavily rising competition. Competition is very good, but healthy competition is good for development. एक level of stress body में बहुत जरूरी होता है to perform. बट आज जो रैट रेस हम सब अनुभव कर रहे हैं अपने आसपास, अपने घरों में, अपने समाज में, जिसकी वजह से कंट्री में सुसाइड इतने बढ़ गए हैं। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, कॉम्पिटिशंस क्लियर करने के लिए जिस तरीके से कोटा मॉडल हमारे पास है, समवेयर वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें सोचना पड़ेगा इस रैट रेस का हिस्सा कितना बनना चाहिए, क्या हमें इसके प्रति कुछ और नजरिया रखना है। ये माइंडसेट के ऊपर मैं जरूर आऊंगी, इन चीजों के बारे में चर्चा करूंगी। बट ये जो न्यू एरा के डाउन साइड्स हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। हम यूथ को, हम प्रोफेशनल्स को, हम सबको एज अ सिटीजन। सो बहुत ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है। आप एक फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं जब 12th के बच्चों के एडमिशन के लिए, आप उस समय देखें 99.5 तक जाता है, 98%। जो बच्चा 95% लेके आया वो डीयू में पढ़ने का हकदार नहीं है, क्योंकि सर्टेन एरियाज में कट ऑफ मार्क्स है ही नहीं। सो दीज आर सम राइजिंग चैलेंजेस जो न्यू एरा के साथ हमारे पास आ रही हैं, एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट। We have kind of abused our environment. We all will have to take responsibility for this. Environment abuse इतना ज्यादा हुआ है पिछले एटलीस्ट मैं बोलूंगी 4 से 5 दशकों में,
जो हमारे आने वाले पीढ़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कभी भी हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यू माइंडसेट की बात करते हैं, जब तक हम होलिस्टिक तरीके से इन बातों को नहीं समझेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट वी आर डिजायरिंग टू। सो समवेयर एनवायरमेंट में आज आप इवन अहमदाबाद, गांधीनगर की भी बात हम समझ लें तो आप मॉर्निंग में आप जो इंडेक्स आता है एनवायरमेंट का, एयर पॉल्यूशन का, वो एक बार आप देखें। एंड दिल्ली एंड दूसरे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात तो ही हम छोड़ दें, क्योंकि वहां सांस लेने की तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चों के लंग्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? समवेयर एज अ सिटीजन, एज यूथ, हम सबको सोचना पड़ेगा पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है। सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सारे काम कोई और किसी के लिए नहीं कर सकता। हम सबको इसके बारे में जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे वेस्ट हम हमारे घर से निकाल के बाहर रख देते हैं, उसके बाद वो वेस्ट कहाँ जाता है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वेस्ट को हम सेग्रीगेट करके रखें। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम प्रोवाइड करके रखा है प्रॉपरली, भीना कचरा, सूखा कचरा आप अलग रखें, वो एक सिस्टम में जाता है। हम घर के बैटरी सेल्स को वही सब्जियों के छिलकों के साथ डाल के रखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। वाटर पोल्यूशन, environment abuse is also a very downside of the new era. Along with that, social aspect और social fabric जो न्यू एरा में हमने जिस तरीके से उसे बिगाड़ने में कंट्रीब्यूट किया है, somewhere we have to stop, pause, think and reset. पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हुआ है, एडवांसमेंट आया है, हमें है ना जल्दी कनेक्टिविटी रखनी है, वी आर यूजिंग नंबर ऑफ वेज टू कनेक्ट विद पीपल, बट इतना ज्यादा भी फास्ट लाइफ कि हम इमोजी भेज के अपने एक्सप्रेशंस शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हम 2 मिनट बात करके अगर वो एक्सप्रेशन अपना दें अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी में जिनके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं। सो समवेयर इन चीजों के बारे में सोचना होगा। ये समय की मांग है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ पैर मिला के चलना। हर फैमिली आज है ना जॉइंट फैमिली अलग होके न्यूक्लियर फैमिली में जा रही है, बट न्यूक्लियर फैमिली में भी फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो इकट्ठे बैठ के बात करने का समय नहीं है, एक मील साथ में लेने का समय नहीं है। तो ये सारी चीजें डाउनसाइड हैं जो न्यू एरा की हैं। ये बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अनलेस वी आइडेंटिफाई गैप्स वी कैन नॉट मेक अ ब्रिज, और उसको ठीक करने के लिए हम काम नहीं कर सकेंगे। सो मेरा पर्पस इन चीजों को हाईलाइट करने का यही था। नाउ आई कम टू द न्यू नॉर्मल। ये तो न्यू एरा के जो प्लस साइड एंड माइनस साइड थे, उसके साथ साथ न्यू अभी नॉर्मल की जो स्थिति है, एक बात मैं आपको बताऊं, हम इंसान ब्लेस्ड हैं, ह्यूमन बीइंग विथ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, ट्रेमेंडस कैपेसिटी, because human brain or human intelligence is the superior most in the on the planet. दूसरे किसी भी क्रिएचर से ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन ब्रेन सबसे सुपीरियर माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी अनलर्न भी कर पाते हैं, हम अडेप्ट कर पाते हैं। पैंडेमिक आज वर्ल्ड में पहली बार नहीं आया, पहले भी आया एंड समय बीता है ना, सेंचुरी हो गई है इतनी बड़ी पैंडेमिक को आके, फिर पैंडेमिक आया, लेकिन वो सेंचुरी से इस सेंचुरी तक हम पहुंच पाए। सो न्यू नॉर्मल आज एक इतना बड़ा आई वुड से ऑफ कोर्स चैलेंज है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी देता है टू अडेप्ट, टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओनली माई लाइफ, इट्स द लाइफ ऑफ आवर फैमिली, सोसाइटी में हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिन्हें नहीं भी जानते हैं, हम सब इस प्लैनेट को इक्वली शेयर करते हैं। सो प्लैनेट पर रहने वाले किसी भी दूसरे इंसान या क्रिएचर, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। आज सिंपल मुझे अफसोस होता है इस बात को बोलते हुए, मास्क पहनने के लिए हर तरीके से तंत्र लोगों को एनकरेज कर रहा है। फाइन इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट देने की नौबत तब आती है जब हम सही तरीके से चीजों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। फाइन देन आज हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी, वी आर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, हम भी वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ओपीडी चलती हैं, केसेस आ रहे हैं, 1-on-1 में भी हमने शुरू किया है। हायर एजुकेशन के कोर्सेज चलते हैं, जो ऑनलाइन अभी क्लासेस चल भी रही हैं हमारे यहाँ। फाइन हमें भी लेना पड़ा है यहाँ से,
है ना, जो भी केसेस आते हैं, लेकिन वो क्यों जरूरत पड़ती है, इन चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। एंड न्यू नॉर्मल में हम अडेप्ट तभी कर सकते हैं जब हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव से समझें। सो नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट हमारा कुछ, हम इतने इग्नोरेंस के साथ जीते रहे हैं कि न्यू नॉर्मल में उन चीजों के साथ अडेप्ट करने की क्षमता कहीं तो आई फील कॉम्प्रोमाइज हुई है। एंड उसको एक बार, अब तो बिल्कुल समय ऐसा है कि वी हैव टू रीसेट, रीबूट करना होगा सारे सिस्टम को, बिकॉज हम सब एक बार हम सोचे, वी आर बॉर्न इन ऑलमोस्ट, जितने ऑडियंस आज हैं, 70 साल हो गए आजादी के, इंडिपेंडेंट कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आप किसी दूसरे ऐसे कंट्री के बारे में एक बार सोच के देखें जो इंडिया जैसा नहीं है, या जहां इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान इतना मजबूत है, इतनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम देशों का है, इनफैक्ट आई वुड से शायद नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का है। फिर भी why we are so ignorant? Everything every other person or government cannot do, we as a citizen, as a youth, अपनी माइंडसेट को ऐसी रखनी होगी। मुझे याद है अहमदाबाद में मैं हूँ, अहमदाबाद में ट्रैफिक रूल सिखाने के लिए लोगों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत कड़े कदम उठाने पड़े थे, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आपको रेड सिग्नल पे रुकना है, राइट? एंड क्यों नहीं रुकते? इनफैक्ट ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वो सिग्नल की जरूरत भी क्यों होती है? क्योंकि हम नहीं फॉलो करते जब तक हमें कोई डायरेक्ट ना करे। समवेयर एज ह्यूमन बीइंग, स्पेशली आज यूथ को मैं एड्रेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है इन चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। सो माइंडसेट ब्रॉडली है क्या? माइंडसेट इज नथिंग बट द वे वी परसीव सम सिचुएशन, समथिंग, हाउ वी काइंड ऑफ फॉर्म इम्प्रेशन it forms impression on our psyche and we accordingly behave. So यही generally, and जिस तरीके से हम respond करते हैं वो एक mindset frame होता जाता है। But mindset बनने में कई factors का contribution है। मेरे हिसाब से दो major factors है mindset form होने के, एक है biological factor और human factor and other is external factor। ह्यूमन फैक्टर में स्पेशली ह्यूमन बॉडी सिस्टम में दो मेजर सिस्टम्स हैं जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इनफैक्ट सारे सिस्टम्स सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के, बट स्पेशली हमारे सेंसरी सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम, इन दो का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सेंसेस हमारे देखना, सुनना, है ना, छूना, टच करना, स्मेल करना, ये सारी चीजें हैं जो हमें इनपुट देती है हमारे ब्रेन को, एंड वो फिर हम उसको परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं ब्रेन में, एंड अकॉर्डिंगली एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है एंड माइंडसेट फॉर्म होता जाता है। दिस इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग अ माइंडसेट, बट द एनवायरमेंट एस्पेक्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। In which country we live, in what kind of society we live, what is the kind of economic status of our country? Are we living in a very poor country or a poor state, or we are in a very affluent country, right? What is the kind of cultural influence which impacts one's mindset tremendously? सोशल सिक्योरिटी कैसा है ना? बाहर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज की खास मैं बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी जैसी कुछ चीजें होती हैं, नंबर होते हैं हर किसी के सोशल सिक्योरिटी नंबर। इंडिया जैसी कंट्री में तो हमारी फैमिली हमारी सोशल सिक्योरिटी है ना। 18 साल के बाद पेरेंट्स यहाँ बच्चों को सपोर्ट करना पढ़ाई के लिए बंद नहीं करते, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, बच्चा एडल्ट हुआ, 18 साल का हुआ, बच्चों को खुद को अपने एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। सो माइंडसेट को इम्पैक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी आप सबको एलैबोरेट करके समझने के लिए। 3 ऐसे लोगों का एग्जांपल मैं देती हूँ। आप सब ने एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। कलाम साहब छोटे से एरिया से आते थे, इनफैक्ट रूरल एरिया से आते थे, लेकिन वो जिस तरह की सफलता हासिल किया उन्होंने, वो एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इनफैक्ट वो क्या चीज थी? कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती एक इंसान को, अगर वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड पे है अपनी, है ना, सफलता को हासिल करने में।
एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, आप सबने मलाला यूसुफजई का नाम जरूर सुना होगा। वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करती हैं, वहाँ अपने कल्चरल इश्यूज हैं। पढ़ाई के लिए उनके सिर में गोली मारी गई थी। क्या मलाला पढ़ाई करना छोड़ दिया उन्होंने? काफी चैलेंजेस आए उनके पास, लेकिन आज भी वो पढ़ रही हैं, आज भी ग्रो कर रही हैं, एक सोशल मूवमेंट लेके आगे चल रही हैं जो लड़कियों की पढ़ाई को लेके है ना। सो कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश है उनकी। और एक तीसरा एग्जाम्पल मैं दूं बिना नाम लिए, आप सिंपल किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ाई को लेके, करियर को लेके एक इंसान अपना है ना गति पकड़ता है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा जो काफी एफ्लुएंट फैमिली से, या किसी पॉलिटिशियन का बच्चा जो काफी एफ्लुएंट फैमिली से, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। क्या वो तीनों लोग वो सब अचीव कर पाते हैं जो वो करते हैं? बहुत समय कर सकते हैं। वो क्या चीजें हैं जो अचीव करने में मदद करती हैं? राइट फ्रेम ऑफ माइंड। अगर हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, हम हमारे एफर्ट्स में ऑनेस्ट हैं, राइट। शॉर्टकट टू सक्सेस कभी भी सस्टेन नहीं करता, आगे जाके वो नीचे गिराएगा। सो हम ऑनेस्ट हैं अपने एफर्ट्स को लेके, एंड हमने लर्निंग की डोर हमेशा ओपन रखी है, क्योंकि इंसान बोलते हैं ना, वी लर्न टिल आवर लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक हम सीखते हैं। सो वो डोर कभी बंद नहीं करना चाहिए। आई फील स्पेशली यूथ को मैं ये बोलूंगी कि वो डोर कभी बंद नहीं करना चाहिए। वी नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन से दे नो एवरीथिंग। हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, हम को एग्जिस्ट करते हैं, वी शेयर द प्लैनेट, वी शेयर रिसोर्सेज। सो ये कुछ चीजें हैं जो राइट माइंडसेट को फ्रेम करने में हेल्प करती हैं, एंड आपको है ना आपकी सफलता अचीव करने में ये चीजें हमें हमेशा हेल्प करती हैं। Now I come to the third key point what I wanted to share with you, that how can we achieve or how can we keep right frame of mind? By understanding our inner potential only, because every human being is blessed with tremendous potential. In fact मैं आपको बोलूं, हम बहुत छोटे से बच्चे जो तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा है, वो भी अपने लिए सांस खुद लेता है। हम में से कोई उसके लिए सांस नहीं लेते, वो अपनी जर्नी खुद ही जी रहा है। सो कई ऐसी इनर पोटेंशियल हैं जिसमें स्पेशली लर्निंग स्टाइल, अगर हम यूथ अपने इनर पोटेंशियल को समझने की कोशिश करें, लेट अस ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है। कोई भी स्टाइल गलत नहीं है, कोई भी स्टाइल सही नहीं है, बट हमारी स्टाइल क्या है? अगर हम समझते हैं हमारी लर्निंग स्टाइल क्या है, इट कैन बी ऑडिटरी लर्नर, वन कैन बी काइनेस्थेटिक लर्नर, वन कैन बी विजुअल लर्नर। पर्सनालिटी क्या है हमारी? क्या हम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, क्या हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी क्या है ना? हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है? हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना अचीव करना चाह रहे हैं? हमारे इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज अ पावरफुल मोटिवेशनल प्रोसेस जो गाइड करता है एकेडमिक्स और करियर में आगे बढ़ने के लिए, हमारी ट्रेजेक्टरी सेट करने के लिए। सो ये कई इनर पोटेंशियल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कोपिंग स्टाइल। हम सबकी एक कोपिंग स्टाइल होती है, स्पेशली न्यू एरा में न्यू माइंडसेट को सेट करने में या उसको बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश करने में कोपिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी की एक स्टाइल होती है ना। फॉर एग्जाम्पल वन स्टाइल इज फाइट और फ्लाइट, राइट। कोई परिस्थिति में आप उसके साथ लड़के और है ना आगे बढ़ते हैं, कोप करते हैं विथ फाइट, बीइंग इनटू द फाइटिंग मोड। एंड another coping style is flight mode, right? We try to escape and we think कि है ना, अगर बारिश हो रही है और हम छतरी लगा देते हैं तो हम बारिश को नहीं रोकते हैं, लेकिन छतरी से हम अपने को गीला होने से रोक सकते हैं। Similarly, another example of coping style is reactive or proactive coping style, right? Reactive coping style is कि कोई भी ऐसा situation जब stressor emerge होता है तो उसके रिएक्शन में हमारा रिस्पॉन्स बिल्ड होता है। बट प्रोएक्टिव कोपिंग स्टाइल इज एंटिसिपेट करना, है ना, एक स्ट्रेसर को एंटिसिपेट करना एंड उसके साथ फ्यूचर ओरिएंटेड कोपिंग स्टाइल। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्कवर, डेवलप एंड अप्लाई, दिस इज द की व्हिच आई फील इन न्यू एरा with a new mindset, it will help all of us to take to a new direction.
एंड आई थिंक स्पेशली हमारे गुजरात सरकार की तरफ से जितनी मदद की जा रही है यूथ की, वी ऑल अ पार्ट ऑफ इट। एंड इसके साथ ही मैं अपनी चर्चा यहाँ रोकूंगी एंड मैं चाहूंगी मानसी जी अगर आगे कुछ बताना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you very much, ma'am. I am thankful to ma'am to share her experience and knowledge among and youth. Now I would like to Honorable Madam Principal Secretary, Higher and Technical Education, Chairperson of SCOPE, Madam Anju Sharma, Madam, kindly share your thoughts on this occasion, ma'am. So good morning, everybody. Dr. Madhu Singh, Nagarajan, Shivani, and all the participants of this webinar on new mindset, new era. It was nice to hear the views of Madhu Singh. How in the present scenario, COVID is not only affecting the general social fabric as well as the general way of living, but also making a huge impact on the minds of everybody. As we are seeing, and I was reading one study that in these many months, about 9 to 10 months of COVID, at least 53% of the people have been found to be suffering due to some mental disorder, or I won't say disorder, but mental problems, because of the unprecedented situations that arose during COVID. एक अभूतपूर्व परिस्थिति जैसी हमने अनुभव की, और उसकी वजह से लोगों के दिमागों पे बहुत असर इसलिए हुआ है क्योंकि जहां आप बहुत अलग अलग रहते थे वहां दूर हो गए हो, और जहां आप दूर रहते थे वहां अलग अलग हो गए हो। जैसे कि घर के लोग सिर्फ 10 या 8 घंटे मिलते थे, जिसमें भी शाम को 2-3 घंटे, सुबह 2-3 घंटे, बाकी टाइम नाइट टाइम रहता था। तो वो लोग जो दूर दूर होते थे वो सब एक साथ हो गए, और जो लोग के साथ आप पूरा दिन निकालते थे, आपके ऑफिस कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जिनसे आप लगातार मिलते थे, आपके नेबर्स, उनसे आप दूर हो गए और उनके साथ कम समय बिताने लगे। तो दोनों ही परिस्थितियां हुई। इसकी वजह से दूरियों ने भी असर किया और नजदीकियों ने भी असर किया। दूरियों ने इसलिए असर किया कि जिनके साथ आप काफी सारी चीजें शेयर करते थे, जिनके साथ आपको अच्छा लगता था, उनके साथ आपको समय कम मिलने लगा या नहीं मिलने लगा। तो वो जो चीजें आप शेयर कर लेते थे वो चीजें अंदर रहने लगी। और एक छोटे घर में 2 या 3 रूम्स में जब 5-6 मेंबर साथ साथ कॉन्स्टेंटली रहने लगे, जो लोग सिर्फ 2-3 घंटा इंटरेक्शन करते थे वो 12-15 घंटे एक साथ इंटरेक्शन करने लगे, तब वहां पर भी दरारें जो थी वो सामने आई, और वहां पर भी जो अनरेस्ट है और डिस्कम्फर्ट है वो भी सामने आया है। और उनमें से जो उस इंटरेक्शन से, वहां पर लैक ऑफ इंटरेक्शन से डिस्कम्फर्ट हुआ, तो यहाँ पर जो ज्यादा इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ, और उसकी वजह से आपका माइंड असर होने लगा। तो ये दोनों परिस्थितियों ने मिलके हम लोगों के लिए एक नई परिस्थिति पैदा की है, जहां पर हमें एक न्यू नॉर्मल की तरफ आगे अब बढ़ना है। परिवार के लोग नजदीक आए, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल नजदीकी और मेंटल स्पेस दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम किसी के साथ
जो हमारी भौतिक दूरी है वो कम होती है, तो हम मेंटली भी उनको क्लोज कर देते हैं, मेंटल स्पेस नहीं दे पाते उनको। तो फिजिकली दूर रह के मेंटली क्लोज रहना और फिजिकली क्लोज रह के मेंटली दूर रहना, मधु जी शायद इस बात से एग्री करेंगी कि ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हम किसी से दूर हैं तो हम उनसे मेंटली दूर नहीं होते हैं और उन्हें हमें मेंटली दूर नहीं करना है, और ना ही वो होते हैं। और यदि कोई फिजिकली पास रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मेंटल स्पेस देना छोड़ दें, या हम जो हमारे मेंटल दूरी पहले रहती थी उन्हें हम ना रखें और उनकी हर चीज में हम इंटरफेयर करने लगे, इंट्रूड करने लगे। आप लोग यंगस्टर्स हो, पहले आप लोग 7-8 घंटा कॉलेज में बिताते थे, बाहर दोस्तों के साथ बिताते थे, अब वो घर में बिताने लगे। शुरू में तो कोविड में, लॉकडाउन में बिल्कुल ही घर में बिताते थे। तो जो पेरेंट्स आपकी कम चीजें देखते थे वो ज्यादा चीजें देखने लगे, हर चीज पे टोकने लगे आपको, तो आपको परेशानी होने लगी। आप भी जो बातें आपको घर की पहले पता नहीं होती थी वो बातें पता होने लगी, तो आपको उससे परेशानी होने लगी, म्यूचुअल परेशानी हो गई, आपको फ्रिक्शन बढ़ने लगा, माता पिता डांटने लगे, माता पिता आपस में लड़ने लगे, तो आपको क्लेश होने लगा, आपके दिमाग में टेंशन होने लगी। पहले लड़ते थे आपको पता नहीं चलता था, अब लड़ते तो आपको पता चलने लगा। तो ये सब चीजें उनकी अपनी प्रॉब्लम्स, वो अपना बैगेज लेकर घूम रहे हैं, आप अपना बैगेज लेकर घूम रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग, we people are bunch of, our mind is a bunch of experiences, our mind is a bunch of impressions, experiences, attitudes, behavior patterns, ये सबका एक माइंड है बना हुआ। और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, लेकिन इस विषय पे मैंने काफी पढ़ा है और काफी समझा है इस विषय को, कि जो बच्चे की पर्सनालिटी है, जो आप लोग आज जो पर्सनालिटी देख अपनी है आपकी, उसको शेप करने में जो शुरू के 8 से 10 साल होते हैं, और खास करके शुरू के 5 से 6 साल होते हैं, 8 से 10 साल और अप टू 14 ईयर्स तक जो मानसिक विकास है काफी जल्द तेज होता है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस टाइम में बन जाती है। वहां पर जो आपने धारणाएं बनाई हैं, वो धारणाएं एक बार आपके में बन गई, लेकिन वो धारणाएं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे बनी है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे बनी है। अब आप नए सर्कमस्टेंस में हैं तो आपको वो धारणाएं चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस नए हैं, धारणाएं नई हैं। तो सॉरी, गिव मी अ मिनट। तो आपको अब ये 2-3 तरीके की चीजें, मैं इस सब में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी कि हमको इससे कैसे फाइट करना है, न्यू नॉर्मल में कैसे अपने आप को डालना है। देखिए चैलेंज, ये यहाँ पर डॉक्टर मधु बोल रही हैं, मैं बोल रही हूँ, मानसी बोल रही है, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में नहीं है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में है। चैलेंज कोविड को सबने, जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, सबने एक्सेप्ट किया है, बट कोविड को हमें एक्सेप्ट करके और न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना है। तो एक होता है फेस करना और एक होता है एक्सेप्ट करना। फेस हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो उलझ जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वी आर क्रिपिंग अबाउट इट। अभी कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल परेशान हो गए हैं, ये हो गया। यू डोंट नो, अभी 1 साल मास्क लगाना पड़ेगा, शायद 2 साल मास्क लगाना पड़ेगा, हो सकता है 5 साल मास्क लगाना पड़े। नहीं, ये नहीं कहते कि लगाना पड़ेगा, पर एक्सेप्ट करना है कि अब हमें मास्क लगा के ही घूमना है, तो आप उसी में नई चीजें ढूंढ लीजिए। तो जो आप, जैसे लड़कियां हैं, तो जो उनको लगता था कि मास्क की वजह से हमारी स्टाइल चली गई, तो मास्क में स्टाइल ढूंढ लीजिए। आप लोगों ने मास्क में स्टाइल ढूंढना चालू कर दिया। आप अपनी
उस चीज को जैसे ही एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, फेस करने के साथ साथ एक्सेप्ट करना है, दैट स्वीकार करो उसको कि ये परिस्थिति ऐसी है, अभी ऐसी रहनी है और ये ही है और ये ही रहनी है और मुझे इसी के साथ मैत्री करनी है, इसी के साथ मुझे सामंजस्य करना है, एंड दिस इज द ओनली वे। एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखना है कि मास्क लगा के घूमना है, कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है, उसी के साथ हमें जीना है। तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, आई थिंक somebody mentioned about esteem issues, कि यूथ में एस्टीम के बहुत इश्यूज हैं, कि हम जो हैं इतने वर्दी है या नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत असंतोष आता है, खास करके यंगस्टर्स में, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। तो एक मैं आपको बताती हूँ, एक स्टडी हुई है कि विश्व की जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं, उनकी जब डॉक्यूमेंटेशन करी गई और उनसे जब सर्वे किया गया, तो 97% of them had a feeling that they were not beautiful, and they considered कि उनमें कोई ना कोई खामी है जिसकी वजह से वो सुंदर नहीं है। तो आप समझिए कि विश्व की जो सबसे सुंदर महिलाओं का जब सर्वे किया गया, जिनको आप सुंदर समझते हैं, आप ब्यूटीफुल समझते हैं, वो अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझते। इसका मतलब कि कहीं कुछ मिसिंग है, ब्यूटी है या अच्छापन है या वर्दीनेस है, वो सब्जेक्टिव है। आप दूसरे के नजरिए से देखें, अपने नजरिए से देखें, तो एक वो जॉरी विंडो होता है ना, कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, दूसरे आपको कैसे देखते हैं, और आप एक्चुअल में है क्या। तीनों चीजें कई बार अलग होती हैं। तो एक्चुअल में आप क्या है, वो तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि हम ह्यूमंस की सारी नॉलेज सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो जो भी बताएगा वो अपना ही व्यू बताएगा, इसलिए उसको तो हम छोड़ देते हैं कि आप एक्चुअल क्या है, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो कम से कम इस वर्ल्ड में रह के तो पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली क्या है, बिकॉज ऑल नॉलेज इज सब्जेक्टिव नॉलेज। अब बचा कि लोग आपको क्या सोचते हैं और आप क्या हो। तो लोग आपको क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आप ब्यूटीफुल हो, आप सोचते हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। तो क्या है कि आप अपनी कमियां देख रहे हो और लोग आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आप अपनी कमी मत देखो, और अपनी हमको सिर्फ स्ट्रेंथ ही देखनी है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में आदमी परफेक्ट नहीं है। कोई भी जो एब्सोल्यूट के अलावा कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, और हर किसी में इम्परफेक्शंस है। और जब इम्परफेक्शंस है और जब हर किसी में इम्परफेक्शंस है, तो हर आदमी खराब है। अब जब हर आदमी खराब है तो हर आदमी खराब है, फिर आप खराब है तो क्या हो गया। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, कि आपकी हाइट कम है, या आप अच्छे से बोल नहीं पाते, या आप स्टैमर करते हो, या आपको लगता है कि आप दिखने में अच्छे नहीं लगते, या आपको लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करते, या आपको लगता है कुछ और है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब सब्जेक्टिव हैं। आप अपने आप को सुंदर समझने लग जाओ, आप सुंदर हो जाओगे। इसमें सिर्फ माइंड को बदलने की बात है। आप ये चीज रियलाइज करोगे कि सेम सिचुएशन में आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। आपके पास आज 1 लाख रुपया है, ठीक है, आप ऐसे मान के चलो आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, और आज आपको 5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है कि आज मुझे 5 लाख रुपए कोई देने वाला है, और वो तुमको 1 लाख देगा। तो क्या होगा, दुख होगा कि खुशी होगी? दुख होगा ना, कि मुझे तो 5 लाख मिलने वाले थे, 1 ही लाख मिला। तो क्या हुआ कि पहले तो कुछ भी नहीं था, और अब 1 लाख मिला तो भी आप दुखी हो। पहले कुछ भी नहीं था तब भी आप दुखी नहीं थे। लेकिन 5 लाख हटा दो, अब 1 लाख मिलने वाला हो और 1 लाख मिल जाए तो आप बड़े खुश हो। मिला आपको 1 लाख ही, लेकिन पहले वाले केस में आप खुश नहीं हो, दूसरे वाले केस में आप खुश हो। तो मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या है, खुशी वहां से नहीं आती है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ आप वहां से क्रिएट नहीं कर रहे हो। आप कहाँ से क्रिएट कर रहे हो? सब्जेक्टिविटी से क्रिएट कर रहे हो।
तो उस सब्जेक्टिविटी को आप जैसे ही हटाओगे और जो कुछ आपके पास है उसमें आप सेटिस्फैक्शन ढूंढ लोगे, तो आपको लगने लगेगा अरे मेरी तो वैल्यू इतनी है, मेरी तो वर्थ इतनी है, मुझे तो पता ही नहीं था। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी बीमिंग विद ग्लो। आपके बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ खास करके यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड को फेस करो। अब आप पढ़ते हो, फिर आप जॉब में जाओगे, कोई भी आदमी जॉब में भी नोबडी वांट्स एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन जिसे खुद पे विश्वास नहीं हो वो किसी सिस्टम को कैसे चला सकता है, वो कोई काम को कैसे आगे बढ़ा सकता है। आप बताओ कि यदि आप एक पैरापेट वॉल पे खड़े हुए हो जिसके एक तरफ 1000 फीट का गड्ढा है और आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो किसी दूसरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कुछ हाथ में पकड़ा दे उस पैरापेट की वॉल पे? नहीं आएगा ना। कब आएगा? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप पैरापेट के ऊपर स्टेबल खड़े हुए हो, तो वो दूसरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ये स्टेबल खड़ा हुआ है, ये कर लेगा, और वो आपको चलना भी पड़े ना तो उसके लिए अलाउ कर देगा और अपना सामान भी दे देगा, हो सकता है अपना बच्चा तक पकड़ा दे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस होता है जो दूसरे के कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करता है। ये सब चीजें हमारे यूथ के लिए, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मैंने अक्सर देखा है कि कई बार मैं जब यूथ से बात करती हूँ, कई बार 1-to-1 डिस्कशन भी करती हूँ, उनको लगता है कि लोग मुझे लाइक नहीं करते, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते। ना, कभी भी आप अपने अंदर झांक के देखें कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। क्या आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए पूरा कर रहे हो अपना काम, अपना फर्ज जो है। मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती रहती है, अरे माँ डांटती रहती है लेकिन माँ जो एक्सपेक्ट तुमसे कर रही है वो आप कर रहे हो, पढ़ते हो टाइम पे, जो माँ का मदद करते हो, माँ से प्यार से बोलते हो, तो आप अपने आप को पहले देखोगे नहीं, लेकिन दूसरे को पहले देखोगे। पहले अपने आप को देखो, और यदि सिचुएशन डिफिकल्ट है भी तो इससे अपने आप को डिटैच कर, अलग करने की कोशिश करो कि ठीक है ये है, ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अब उससे अपने आप से डिटैच कर लो कि मुझे इसी सर्कमस्टेंस में आगे बढ़ना है। और लोग एडवर्स से एडवर्स सर्कमस्टेंस में है। महात्मा गांधी थे, कितना जुल्म सह के, कितनी इंसल्ट सह के उन्होंने वहां सही, और फिर आके उन्होंने एक देश को पूरा खड़ा किया। तो आप उस जो आपके साथ अन्याय हुआ उस अन्याय को अपना भाग नहीं बना सकते, वो अन्याय अलग है और उस अन्याय से आपको डील करना है, उसको अन्याय को अपने में घुसाना नहीं है, विद कॉन्फिडेंस आपको उसके सामने लड़ना है। तो ये सब चीजें आपके लिए खुद की पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है और नेशन बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है। मैं तो बहुत जेनरिक चीजें बता सकती हूँ, सर्टेनली डॉक्टर मधु सिंह ने आपको बहुत उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड और सिस्टमैटिकली बताई है चीजें, तो आई एम श्योर आपको पूरा फायदा हुआ होगा। एंड ये सब बहुत सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, बहुत जरूरी है सारी चीजें। आप लोग अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स भी काफी लोगों के अभी चालू होने वाले हैं, तो विद कॉन्फिडेंस आगे बढ़िए। एंड आई एम श्योर दिस यूनिवर्स इज अ वेरी गुड यूनिवर्स, वी जस्ट हैव टू हैव ट्रस्ट कि चीजें हमारे साथ अच्छी ही होंगी, और वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, and thank you very much for giving me this opportunity to speak. Thank you. Thank you very much. Thank you, Anju ma'am, being with us. As Anju ma'am shared positive and negative aspects of pandemic, you need to adapt it and change your attitude and adapt the new normal. We all make some mistakes, we all face difficulties in life, and we will have to face that setbacks, but there is always a room for comeback. There is always, you can set your mind accordingly. You must have mindset of facing the world. You must be strong. You must be able to take whatever is coming to you. If you stumble, if you fall, have the ability to get up. This is how we can face the world.
And I'm thankful, Anju Madam, that she has spared time, and it's our privilege that ma'am is with us, and under the guidance we can make this event successful. I am also thankful to our speaker, Dr. Madhu ma'am, who shared her experience and knowledge among us and the youth. Scope constantly arranging various webinars, e-quizzes, competitions, and workshops. Every day we post new words to build up vocabulary. So go through Scope Facebook page every day to learn new words and make new vocabulary, your vocabulary strengthen, and get updated yourself for ongoing and upcoming program of Scope. Kindly fill up the feedback form. Feedback link is available in the comment box and our Scope FB page. Thank you very much, Anju Sharma Madam, Sri Nagarajan Sir, and Madhu Ma'am. I'm thankful to you all, and thank you all, my dear students. Thank you for joining us on this webinar. Thank you, ma'am. Thank you so much, Mansi. Thank you. It was a good conversation, and I hope everyone got benefited. Thank you so much. Thank you. Yes. Namaste, ma'am.